Hello dear children, good afternoon. Today we are here with the new poem of Flamingo. The name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers, and this poem is composed by Adrienne Rich. And by the way, I'm your teacher Deepak Juneja, and you are welcome at the YouTube channel English Kingdom. So today we are going to begin this poem. This poem is composed by Adrienne Rich. Let's talk about Adrienne Rich first. Let's have the introduction of the poet. You can see in the picture Adrienne Rich. Adrienne Rich was an American poet, essayist and feminist. Feminist is the person you can see here. Feminism is a range of social movements, political movements and ideologies that aim to define, establish and achieve the political, economic, personal and social equality of the sexes. Feminism incorporates the position that societies prioritize the male point of view and that women are treated unjustly. So what is the essence of that one? Feminist is a person who fights for their own rights in the name of sexual equality, gender equality. Those are called feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. We have nothing to do with that one. Only the thing is that she was born on May 16, 1929, and the place was Baltimore, Maryland, US. And she died at the age of 82 in Santa Cruz, California, US. She was a poet, non-fiction writer and essayist. Basically what the idea we have got about her that is that she was working for the betterment of women. She was fighting for their rights. The echo of the same theme will be reflected in her poems also when you read the poem. So just go to the poem. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary कहते हैं of the same age, contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. So these are the main themes of her work. Strong resistance कहते हैं protest, विरोध. Racism कहते हैं discrimination in the name of race. Militarism कहते हैं the presence of military everywhere and compromising with democratic rights. Militarism यानी पूरी तरह से जो देश का या जहाँ जिस भी जगह पर हम रहते हैं उसका अगर पूरी तरह से सैन्यीकरण हो जाए. सैन्यीकरण का मतलब हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे पास न रहें और सारे अधिकार मिलिट्री के पास चले जाए, उसे मिलिटरिज्म कहते हैं. तो इनके खिलाफ जो आवाज़ थी ये उनकी पोएम के मेन थीम थे. लेकिन इस पोएम का मेन थीम ये नहीं है. इस पोएम का मेन थीम है रेसिस्टेंस टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, रेसिस्टेंस टू डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स वेमेन. औरतों के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव जो होता है, वायलेंस जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर ध्यान अट्रैक्ट किया गया इस पोएम के अंदर. द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस. कॉन्स्टेंट्स कहते हैं हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स. मैरिड लाइफ की कौन कौन सी हर्डल्स होती हैं, मैरिड लाइफ की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं जो एक औरत को फेस करनी होती हैं. दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर. Aunt Jennifer's tigers actually she is making on panels. They are not the living tigers. ये living tigers नहीं है, ये tigers वो panel पर एक बड़े से canvas पर बना रही है. And Aunt Jennifer simply it's a representative name. ये एक representative name है Aunt Jennifer. जो कई जो औरतें हैं जिनके खिलाफ बुरा बर्ताव होता है वो उनको रिप्रेजेंट करती है. तो आंट जेनिफर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ऐसे ही नाम लेने के लिए नाम लिया गया है. एंड टाइगर्स आर ऑब्वियसली नॉट द लिविंग टाइगर्स. टाइगर्स आल्सो आर द टाइगर्स वोवन टाइगर्स का मतलब बनाए गए टाइगर्स हैं जो पैनल पर आंट जेनिफर बुन रही है. सो लेट्स गो टू द पोएम. आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen. Prance means to make a big jump. Look at the picture. This is called prancing. ये पूरी की पूरी prancing कहलाती है. Across a screen का मतलब स्क्रीन पर. जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर across इसको बोलेंगे, ये across है. अगर हम इस तरह से मूव करते हैं तो ये इस तरह से, in that way, slanting. Bright topaz denigens. Bright means चमकीले, topaz means of yellow colors, denigens जैसे citizens होते हैं वैसे denigens होते हैं. Of a world of green. World of green refers to forest.
ये फॉरेस्ट के डेनिजन्स हैं, ब्राइट हैं। टोपाज मीन्स डार्क येलो कलर के हैं। एंड आंट जेनिफर ने ये टाइगर बनाए हैं। एंड दे कैन बी सीन जंपिंग, उन्हें देखा जा सकता है जंप करते हुए अक्रॉस ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के अक्रॉस। तो लेट मी क्लियर इट अगेन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट द रियल टाइगर्स, दे आर एक्चुअली द टाइगर्स वोवन बाय हर, जो उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, ऊन से बनाए जा रहे हैं। What is the speciality of these tigers? They do not fear the man beneath the tree. Look at the word man. वो आदमियों से डरते नहीं हैं beneath the tree, जो पेड़ के नीचे खड़े। यहाँ women भी लिखा जा सकता था, लेकिन लिखा क्या है? man. They do not fear the man. उन्हें आदमियों का, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, उनका डर नहीं लगता। They pace. Pace means speed. In sleek, chivalric certainty. Sleek means fast. तीव्र जिसको बोलते हैं। chivalric मीन्स फुल ऑफ करेज, certainty मीन्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो बहुत फास्ट हैं, फुल ऑफ करेज हैं और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। chivalric certainty, ये एलिट्रेशन नहीं है। लुक एट द वर्ड साउंड, साउंड देखिए, श, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज श, chivalric, एंड दिस इज स, सो ऑब्वियसली नो एलिट्रेशन इज देयर। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है। So what is the essence of the first stanza? Aunt Jennifer is weaving tigers. Aunt Jennifer एक स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन का मतलब एक पैनल के ऊपर, एक कैनवास के ऊपर टाइगर्स बना रही है। ऑब्वियसली वूल के बना रही है, ऊन के बना रही है। दे आर ब्राइट, उसके टाइगर्स बहुत ब्राइट हैं। टोपाज डार्क येलो कलर के हैं। डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और जंगलों के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उन्हें पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से कोई डर नहीं लगता। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty, स्लीक का मतलब फास्ट एंड ब्यूटीफुल होता है। उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट है, दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट, एंड chivalric मीन्स दे आर फुल ऑफ करेज एंड दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। नाउ दिस इज alliteration there, fur and fur, this is alliteration. Aunt Jennifer's fingers are fluttering. Aunt Jennifer की fingers जो flutter means trembling, कांप रही हैं। Through her wool, wool is the material which is being used by her for making tigers. Find even the ivory needle hard to pull. Ivory कहते हैं हाथी दांत को। तो this needle is made of ivory and she is trembling. She is trembling so much that it has become very difficult for her even to pull the ivory needle which she is using to weave the tigers. Why? क्यों? It is because of the uncle's fear. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसे अंकल का बहुत डर लग रहा है। अंकल का मतलब आंट जेनिफर के हस्बैंड। The massive weight of uncle's wedding band. Wedding band is the symbol of marriage. Wedding band symbol है मैरिज का। अंकल का जो मैरिज का मैसिव वेट है, मैसिव मीन्स ह्यूज, भारी, हैवी, वेट मतलब वजन, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों के ऊपर बहुत भारी है। तो किस रूप में भारी है? एक्चुअली आंट जेनिफर इज वेयरिंग ए रिंग। आंट जेनिफर ने एक अंगूठी पहनी हुई है, दैट इज मैरिज रिंग, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ द मैरिज एज वेल, बट इट इज लुकिंग वेरी हैवी टू हर, लेकिन ये उसको बहुत हैवी लग रही है बिकॉज ऑफ द अंकल्स टॉर्चर्स एंड सफरिंग्स, क्योंकि अंकल उसे बहुत डराते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, उसे बहुत पीड़ाएं देते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, वाई द फिंगर्स आर फ्लटरिंग, वाई द फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग, because it is because of uncle's fear. The marriage with uncle has not brought anything for her, only fear, nothing else, and she is trembling like anything. So much she is trembling that even she cannot pull the ivory needle which she is using to make the tigers of wool. Okay, coming to the third stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals. Her terrified hands means fearful hands, will lie, यानी when she will be under the land, जब जमीन के नीचे चली जाएंगी ग्रेव में,
तब भी वहाँ पर उनके जो हाथ है स्टिल रिंग्ड, उनके अंदर वही अंगूठी होगी। विद ऑडिल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, जो उसे उन ऑडिल्स का मतलब टफ एग्जामिनेशंस की याद दिलाती रहेगी। दैट शी वाज मास्टर्ड बाय मीन्स कंट्रोल्ड बाय। तो व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी तो उन्हें ऑब्वियसली ज़मीन के नीचे कब्र में ले जाया जाएगा। बट हर हैंड्स विल बी टेरिफाइड, लेकिन उनके हाथ उस समय भी डरे हुए होंगे। उस समय भी उनमें वो रिंग होगी, और वो रिंग उनको हमेशा उन ऑडिल्स की यानी टफ एग्जामिनेशंस की याद दिलाती रहेगी। दैट शी हैड गॉन थ्रू आउट हर मैरिज, जिनसे होकर वो अपनी पूरी मैरिज में गई है, गुजरी है, और जिससे पूरी मैरिज में अंकल ने उसे कंट्रोल किया है। बट द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो टाइगर्स पैनल में बनाए हैं उन्होंने, वो तो हमेशा ऐसे ही जंप करते रहेंगे, प्राउड रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। मीन्स आंट जेनिफर ने ये टाइगर बनाए क्यों हैं? एक्चुअली दिस इज हर हिडन डिजायर टू बी लाइक अ टाइगर। ये उसकी छिपी हुई इच्छा है। शी विशेस शी कुड हैव बीन टाइगर्स। उसकी इच्छा है कि काश वो टाइगर्स होती तो जंप करती, प्राउड होती, किसी से डरती नहीं, इन आदमियों से तो बिल्कुल नहीं डरती। दैट्स वाई शी इज वीविंग द टाइगर्स। ये उसकी हिडन डिजायर है। यहाँ पर हम एलिट्रेशन देख सकते हैं। पी साउंड इज बीइंग रिपीटेड, प्रांसिंग, प्राउड। ओके, ये जो रिंग्ड वर्ड है, रिंग्ड, इसमें एक पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है। उस पोइटिक डिवाइस का नाम होता है पन, और उसकी स्पेलिंग होती है PUN। अब ये पन क्या होता है? जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकलते हों तो उसे हम पन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, रिंग के दो मीनिंग निकल रहे हैं। रिंग का एक मीनिंग निकल रहा है सर्कल। सर्कल का मतलब घेरा। मीन्स शी विल बी इन द सर्कल। विच सर्कल? द सर्कल ऑफ ऑर्डील्स, सर्कल्स ऑफ टफ एग्जामिनेशंस, सर्कल ऑफ टॉर्चर्स, सर्कल ऑफ सफरिंग्स। और रिंग का दूसरा मतलब क्या होता है? मैरिज रिंग। इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक रिंग सर्कल और एक रिंग मैरिज रिंग, इसलिए इसे हम कहेंगे पन। तो एक वर्ड के जहाँ दो मीनिंग निकलते हैं और दोनों मीनिंग आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, उसे हम पन कहते हैं। तो इसमें अगर पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइसेस हमें मिले एलिट्रेशन, और हमें यहाँ पर सिम्बोलिज्म भी मिला। सिम्बोलिज्म की स्पेलिंग होती है SYMBOLISM, सिम्बोलिज्म। वेडिंग बैंड इज द सिंबल ऑफ मैरिज। और ये यहाँ पर हमें पन मिला बिकॉज द वर्ड रिंग हैज़ टू मीनिंग्स। द फर्स्ट मीनिंग इज सर्कल, सर्कल ऑफ टॉर्चर्स, सर्कल ऑफ ऑर्डील्स, सर्कल्स ऑफ सफरिंग्स। और रिंग का दूसरा मतलब होता है मैरिज रिंग। So I hope I could help you to understand this poem. Yet if you have any difficulty, please drop your comment in the comment box. Thank you.